Before I start this video, I would like you to take a look at this picture. This picture has been taken in Mali, a country in Africa. In this picture you can see that a girl is crying so loud and there are people surrounding her and nobody is caring too much to hold her and stop her cry. And even you can see one person is holding a blade and trying to cut something. What is that part? What is that thing that that person is trying to cut through that blade? It is her external genitalia. That person is trying to cut that external genitalia of that small girl. And that is why that girl is crying so loud because of the pain that she is feeling, she is experiencing. This is a practice that is being followed all over the world, where the female external genital part, genital organ, is being cut and separated from that person, from that girl, that she is not allowed to experience any kind of pleasure, any kind of female experiences of having sex or having masturbation. So before I go any further, I would like to mention that this video is going to be very explicit and very open. When a girl is masturbating, that girl is feeling some kind of pleasure, and that is why she is doing it. And why is she feeling that pleasure? It's only because of the reason that she has a special reproductive part in her vagina because of which she is feeling it, and it is called clitoris. Clitoris is the reason why she feels the pleasure while having sex or masturbating. And it is the only reproductive part which is solely meant to feel pleasure and which is only present in the female. Male body parts has nothing like that. So why did I mention about clitoris? It's only because of the reason because that is linked with this video. I'm going to talk about female genital mutilation. Female genital mutilation is about removing, cutting, piercing, or even burning, and even also sewing close of the vagina or the external female genitalia. It is called female genital mutilation. Female genital mutilation is highly conservative and traditional practice which is being followed all over the world, not just in some parts of Africa. It is being followed in Asia, in Middle East, in North America, Australia, New Zealand, and also Africa. So what is female genital mutilation actually? Female genital mutilation is a practice of removing the clitoris or the labia majora or labia minora, which are the female reproductive parts, or also it is a practice to sew close the female vagina. That is called female genital mutilation. Even there are reports where people use some other means to remove the female genitalia, which includes burning or even pouring acid into vagina. And this practice has nothing to do with any kind of health benefits or any kind of positive impact in that person. On the other side, on the contrary, this practice resulted in the death of some female person. There are reports where females are dying due to this practice. There are reports of female person dying each year as a result of this practice. और ये एक ऐसी practice है जिसको बिना सवाल किए हर कोई इसको फॉलो करता है, और इस प्रैक्टिस से किसी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. इस प्रैक्टिस को हर कोई करता है, हर कोई किसी भी रिलीजन का हो, चाहे एक जीविश पर्सन हो या चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, हर कोई इसको फॉलो करता है. दिस इज़ बेसिकली कम्यूनल इन नेचर. इट इज़ अ कम्यूनल प्रैक्टिस. ये एक प्रैक्टिस है जो कम्युनिटी में की जाती है. देखा जाए तो इसकी शुरुआत कुछ अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से हुई है, पर अभी ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को प्रैक्टिस करने के पीछे की वजह काफ़ी अलग है. अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में आपको इसकी वजह अलग अलग मिलेंगी. किसी कम्युनिटी में ये माना जाता है कि अगर किसी फीमेल पर्सन को उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन करवाना पड़ेगा. किसी कम्युनिटी में ये माना जाता है कि ये एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर उस लड़की को अपने आप को शुद्ध साबित करना है तो उसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा. किसी कम्युनिटी में इसको एक शादी का ज़रिया माना जाता है कि अगर कोई भी महिला फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के थ्रू नहीं गुजरता है तो वो महिला शादी करने लायक नहीं बनती. किसी कम्युनिटी में इसको एक फीमेल पावर से जोड़ दिया गया है, जहाँ पे बोला जाता है कि जो भी महिला फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के थ्रू गुजरती है उस महिला के अंदर कुछ अलग ताकत आ जाती है, उनको एक ताकत मिल जाती है.
पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक पेट्रियार्कल सिस्टम है जहाँ पे मर्दों ने इन रूल्स को बनाए हैं और मर्दों के रूल्स के चलते महिलाओं को सफ़र करना पड़ता है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कोई नाखून काटना या बाल काटने जितना बराबर नहीं है। एक बॉडी पार्ट को, एक स्किन को या फिर एक ऑर्गन को अपनी बॉडी से अलग कर देना, वो भी परमानेंटली, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। ब्लड लॉस तो होता ही है, उसकी वजह से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके के फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग तरीकों में, अलग अलग टाइप्स में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस कैसे आते हैं। So let's discuss about the different types of female genital mutilation. So basically there are 4 types of female genital mutilation. They are categorized into 4 types. उनमें से सबसे खतरनाक या सबसे कम खतरनाक क्या है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी रिमूवल प्रोसेस हो, या क्लिटोरिस को या फीमेल जेनिटल ऑर्गन को रिमूव करने का कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो, पेनफुल तो सब होता है और कॉम्प्लिकेटेड सब है। पहला टाइप होता है क्लिटोरिडेक्टोमी, जिसको टाइप 1 बोला जाता है, या फिर उसका दूसरा नाम क्लिटोरिडेक्टोमी कहा जाता है। क्लिटोरिडेक्टोमी में ये होता है कि फीमेल पर्सन के क्लिटोरिस को पार्शियली रिमूव कर दिया जाता है। मतलब ये माना जा सकता है कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन में से क्लिटोरिस को अलग कर दिया जाता है, बट पार्शियली। इसको क्लिटोरिडेक्टोमी कहा जाता है, पर यह भी काफ़ी पेनफुल हो सकता है। दूसरा टाइप जो है उसको एक्सीजन भी बोला जाता है या टाइप 2 बोला जाता है, जिसमें क्लिटोरिस के साथ साथ लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा को भी रिमूव कर दिया जाता है। अब लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा क्या होता है? वो एक्चुअली में वेजाइनल कवरिंग होती है एक तरीके से। अगर आप सिंपल तौर से अगर जानना चाहें तो जो वेजाइना है, वेजाइना की कवरिंग को लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा कहा जाता है। जो इनर कवरिंग है वो लैबिया माइनोरा है, जो आउटर कवरिंग है वो लैबिया मेजोरा है। इनको रिमूव कर दिया जाता है। इसको हम सेकंड टाइप में कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इन्फिबुलेशन, जिसको टाइप 3 FGM भी कहा जाता है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकिएस्ट टाइप। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल तरीका आजमाया गया है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का। इससे पहले मैं टाइप 3 के बारे में और बताऊं, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि टाइप 1 और टाइप 2 कम पेनफुल नहीं है, या फिर कम पेनफुल प्रोसेस नहीं है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का। व्हाट इज़ इन्फिबुलेशन? इन्फिबुलेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें फीमेल पर्सन के क्लिटोरिस को लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा को तो रिमूव कर दिया जाता है, उसके साथ साथ एक और बहुत ही दर्दनाक चीज़ की जाती है उस फीमेल पर्सन के साथ। वो ये है कि वेजाइना को सीव कर दिया जाता है, मतलब सील दिया जाता है, इसको टाई अप कर दिया जाता है, कैसे भी उसको आप समझिए, पर एक तरीके से उसको बंद कर दिया जाता है। और वो क्यों किया जाता है मैं आगे समझाऊंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ female genital organ, and it is a passage of urination. It is a passage of menstrual blood to flow out, and उस पैसेज को बंद कर दिया जाता है, पर थोड़ी सी स्पेस रखी जाती है, और वो स्पेस की जो साइज़ है वो एक पी शेप्ड साइज़ होती है। मतलब एक मटर का दाना जितना बड़ा होता है उतनी ही जगह छोड़ी जाती है, और बाकी पूरी वजाइना को एक तरीके से टाई अप कर दिया जाता है। और ये जान के और ज़्यादा हैरानी होगी कि उस टाइड अप की हुई वेजाइना को दोबारा से रीओपन कर दिया जाता है आफ्टर मैरिज, जस्ट टू हैव सेक्स एंड डिलीवर अ बेबी। अप अंटिल देन उस फीमेल पर्सन को टाइड अप वेजाइना के साथ ही जीना पड़ता है, चाहे मेंस्ट्रुएशन का टाइम हो या चाहे यूरिनेशन का टाइम हो। उस फीमेल पर्सन को एक पी साइज शेप जो उनके लिए छोड़ दिया जाता है, उसी के थ्रू यूरिनेट करना पड़ता है, उसी के थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है। When I will be talking about the complications related to FGM, I will tell you how much this complicates with the health of a female person. So the biggest question remains, why is this being practiced? If this process is so harmful and if this process is against the human rights, then why is this being practiced? So different communities have different reasons behind it, and one should not forget that this practice is not only being followed in some African countries or in some Middle Eastern countries. This practice is also being followed in countries like India and North America. So whatever be the reasons behind this practice are, it predominantly is attached with the patriarchal system. For example, for some communities, clitoris is being termed as an unwanted skin. So that's why it is being removed. मतलब क्लिटोरिस को
एक अनवांटेड स्किन की तरह मान लिया जाता है, जिसकी वजह से उसको रिमूव कर दिया जाता है। और महिलाओं को सवाल करने का तो कोई मौका मिलता ही नहीं है, उनको एक तरीके से मर्दों द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से वो बिना कोई सवाल किए क्लिटोरिस को रिमूव करवा देती हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में यह माना जाता है कि लड़कियों का क्लिटोरिस का होना एक पाप है और उस पाप से अपने आप को धोने के लिए क्लिटोरिस को रिमूव करना चाहिए। कुछ कम्युनिटीज़ में इसको प्यूरिफिकेशन का एक ज़रिया माना गया है, जहाँ पे अगर क्लिटोरिस या लैबिया मिनोरा या लैबिया मेजोरा को अगर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए किसी भी ज़रिए से, किसी भी तरीके से, तो उस लड़की को शुद्ध मान लिया जाता है, उस लड़की को प्योर मान लिया जाता है। अगर वो नहीं हटाती हैं, नहीं रिमूव करती हैं, तो एक तरीके से वो शुद्ध नहीं है, शी इज़ नॉट प्योर। और कुछ कम्युनिटीज़ में ये भी माना जाता है कि अगर लड़कियाँ अपनी वेजाइना को अगर टाइड अप नहीं रखती हैं, तो एक तरीके से वो वर्जिन नहीं है, क्योंकि इट विल लीड अप टू प्रोमिस्क्यूइटी। प्रोमिस्क्यूइटी इज़ अ टर्म विच इज़ गिवन एज अ सेक्शुअल, ये हम बोल सकते हैं कि प्रोमिस्क्यूइटी का मतलब होता है सेक्शुअल इंडिपेंडेंट, मतलब सेक्शुअल एक्टिविटी में इंडिपेंडेंस होना, मतलब यू हैव योर ओन चॉइस ऑफ हैविंग सेक्स विद एनीबडी। So the process of female genital mutilation is against promiscuity. So if someone is not tied up, then it is believed that person is not virgin. So that's why the male persons will not marry that female. तो ये एक रीज़न है कुछ कम्युनिटीज़ के लिए। और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। अगर किसी लड़की का FGM होता है, मतलब इफ़ शी अंडरगोज विद द प्रोसेस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, तो उसका मतलब ये होता है कि उस के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं बहुत सारे, जो उस लड़की से शादी करना चाहता है। और अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में ये माना जाता है, कुछ अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में, कि लड़के जब शादी करते हैं तब उनको कुछ गाय बैल या अनाज देना पड़ता है लड़कियों के घर पे। और अगर कोई लड़की एज़ पर द डिस्क्रिप्शन, अगर वो लड़की वर्जिन होती हैं, जो कि अगर वो उस लड़की के साथ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किया जाता है, मतलब FGM होता है, तो उस लड़की को वर्जिन मान लिया जाता है। और अगर वो लड़की वर्जिन है, तो वर्जिन होने की वजह से उस लड़की को ज़्यादा दाम से एक तरीके से ख़रीद लिया जाएगा। शादी कर लेना एक तरीके से ख़रीद लेना होता है। अगर ख़रीद लिया जाएगा मतलब ज़्यादा अनाज मिलेंगे उस लड़की के घर वालों को, ज़्यादा बैल गाय मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमिक रिसोर्स उस लड़की के घर में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि FGM के पीछे कहीं ना कहीं उस लड़की के घर वालों का हाथ होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कम्युनिटीज़, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ आर नॉट वेरी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसकी वजह से ये होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अफ्रीका आर बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रैक्टिस जो इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह सामने आए, तो नोबडी विल स्टॉप फॉलोइंग दैट प्रैक्टिस व्हेन दैट प्रैक्टिस ब्रिंग्स some amount of economic stability into their family. So this is also the reason why FGM is being followed largely in African communities. और सबसे लास्ट रीज़न ये है कि ये कम्युनिटीज़ में एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के तौर पे हज़ारों साल से मनाया जा रहा है। ये एक उनका कल्चर है। जैसे हम अपने कल्चर को कभी खोना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही इस प्रैक्टिस को बहुत ही एक तरीके से डिवोशनली वो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो सारे फॉलो करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपने कल्चर को, इस प्रैक्टिस को अगर वो करना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को खो देंगे। और इस वजह से वो कल्चरल अपहोल्डिंग के चलते एक बहुत ही कंजर्वेटिव प्रैक्टिस को सालों साल फॉलो करते आ रहे हैं। इसका ही एक एग्जांपल है कि एक अफ्रीकन कम्युनिटी से बिलोंग करती हुई एक लड़की है जो अमेरिका में पली बड़ी है। वो अपने कल्चर से इतना ज़्यादा जुड़ी हुई थी, इतना ज़्यादा कल्चर को, अपने अफ्रीकन कल्चर को इतना ज़्यादा वो फॉलो करती थी कि उसने 21 साल की उम्र में कंसेंशुअली अपना FGM करवाया, मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की प्रैक्टिस को उसने कंसेंशुअली फॉलो किया। मोस्टली ऐसा होता है कि 6 महीने या 2 साल या 1 साल की बच्चे के साथ विदाउट एनी कंसेंट ये करवा दिया जाता है। लड़की को कहीं ना कहीं डिसाइड करने का मौका भी नहीं मिलता कि वो आखिरकार ये प्रैक्टिस फॉलो करना चाहती है या नहीं। पर 21 साल की एक लड़की जो अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़ाव था उसने कंसेंशुअली इस प्रैक्टिस को फॉलो किया, जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू अपहोल्ड हर कल्चर। सो देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कल्चरल अपहोल्डिंग एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड ऑल्सो चाइल्ड अब्यूज़. People fails to understand that.